ਝੱਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਡਹੰਸ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਸਭ ਪਰਖਿਆਨ, ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਕੈ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ। ਖੋਟੇ ਦਰਗਹਿ ਸੁਟਿਆਨ, ਊਭੇ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ ਰਾਮ। ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਸਭ ਪਰਖਿਆਨ, ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਕੈ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ। ਖੋਟੇ ਦਰਗਹਿ ਸੁਟਿਆਨ, ਊਭੇ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ ਰਾਮ। ਊਭੇ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ, ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਬਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਜਗਤ ਭੁਲਾਇਆ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰ। ਦੁੱਖ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖਿਆਨ। ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ। ਮਨਮੁਖ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰ। ਦੁੱਖ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖਿਆਨ। ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੋਏ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਰਮਤਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਓ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਕੁ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਾਵੋ ਆਪਣੇ ਚਰਣੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਰਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਇਸ ਕਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬੇਚੈਨ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਨਿਕਟਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਛ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਚੰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ। ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਕਤ ਹੈ, ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਪੱਖ ਨੇ। ਸੰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਦੋ ਸੰਗਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੱਕੇ ਹੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸਾਕਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਲਿਓ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਆਪ 'ਤੇ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਤਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਤਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਖੋਟੇ ਖਰੇ, ਸਭ ਪਰਖੀ ਅੰਨ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਖੋਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਖੋਟੇ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਸਿੱਕੇ ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਕਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਨੋਟ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਅਸਲੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਵਾਰ 20 ਵਾਰ ਤਮਾਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨੋਟ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਟੇ ਦੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੋਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਰਖੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰੇ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰੇ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਖਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਖਰੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਤਰਕ ਦਲੀਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਖਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖਰੇ ਤੇ ਖੋਟੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੀ ਖਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਖਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਵੀ ਆ ਕੂੜ ਕੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 50 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੈ, ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਖਰਾ ਰਤਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਏ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਰਾ ਤੇ ਚੌਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਵਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਢੰਗ ਤਕਰੀਬ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੁਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਸਮਝ ਸਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਹੋਏ, ਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਹੋਏ, ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਭਈ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ,
तो जे चांदी की बजाय किसी ने कुछ होर धातु पा दी है, मिलावट कर दी है, तो पर भाई वो खरा नहीं रहिंदा। तो फिर कई बार जो असीं इस विचार मंडल दे विच देखते हाँ भी जे मान लो बाज़ार विच चांदी का सिक्का चलता है तो उन्होंने असीं कहीं खरा सिक्का, पर वेखण ते भी आया ना कि खरा होने वास्ते कल्ली चांदी ही कीमती नहीं जे, उहदे नाल कुछ होर भी कीमती जे। वो है उस टकसाल दी मोहर, उस बादशाह दी मोहर जिस बादशाह दे राज दा वो सिक्का है, तो जिस टकसाल दे विच घड़िया गया है। अज भी जो साडे कोल कोइन ने आपां सिक्के कहने आ, दो पासियां ते दो मोहरां लगियां होंदियां ने, दोनों मोहरां दे दो ही अर्थ ने। एक दा मतलब हुंदा है भी ये किस देश का सिक्का है, कि इसकी राज मोहर इत्ते लगी हुई है, तो दूजे पासे उत्ते एक बनिया तो कोई होर नक्शा जिहा हुंदा है, पर वो एक डिज़ाइन संकेत दिंदा हुंदा ये बनिया कित्थों है। इसकी टकसाल इसकी घड़न वाली कारीगर, अजकल आप फैक्ट्री कह देंगे, कारखाना कह देंगे, ये टकसाल कारखाना किहड़ा बनिया कित्थे, बस वो नक्शे डिज़ाइन नूं वेख के सियाणे समझ जाते हैं भी ये बनिया कित्थे है, कि वाकया वैलिड है। तो जे दो तीन चीज़ां पूरियां होण ते सिक्का खरा है, भी जिस राजे का है कि राज स्टैंप उहदे उत्ते हैगी है, कि उहदी तोल जो उहदी धातु दा पूरा है, तो कि जिथे बनाया गया पूरा है, क्योंकि राज स्टैंप लगनी तद है जदों पहली दो शर्तां पूरियां होके आएगा तो राज स्टैंप लग जाएगी। इस तरह सानू भी बनाया जाता है। अज इत्थे आपां बैठे हैं ना, ये साडी टकसाल है, ये साडी चटसाल है, इत्थे सानू घड़िया जाता है, इत्थे सानू सवारिया जाता है, इत्थे साडे अंदर शुद्धता पाई जाती है, साडे अंदरों विकारां दी अशुद्धता मिटाई जाती है, तो इत्थे साडे अंदर चंगे विचारां नूं शुद्धता ना पाया जाता है। जिवें इस कारखाने दे विच चांदी भरी जाती, चांदी का दायरा घट ढालिया जाता है, तो जे किसी ने चांदी दे विच कुछ मिलावट की होवे तो उस मिलावट नूं कढ दिता जाता है। वो मिलावट कढ के शुद्ध चांदी नूं जो पैरामीटर सरकार दा हुंदा है उहदे मुताबिक सिक्का ढाल के उत्ते अपनी टकसाल की मोहर लगा के फिर बादशाह दे पेश कर देंदे ने। बादशाह दे सियाणे लोग जिहड़े बैठे हुंदे ने वो परखदे ने, ते जे परखिया जाए तो उहदे उत्ते सरकार की मोहर लग जाती, फिर वो मान्यता प्राप्त सिक्का है, वो बाजार विच हर थां ते चलेगा। तो ठीक है, साडा स्वरूप की होएगा, असीं संसार च विचरे, निंदा चुगली कर्म भी कीते, थोड़ा बहुता चंगे कर्म भी कीते, गुरु दरबार च आए, इत्थे सानू शुद्ध किया गया, इत्थे शुद्ध करके गुरु साहिब इत्थे अपनी मोहर लाउंदे ने। ये सिख है मेरा, जिन्हों असीं कदे कदे प्रवान हो जाइदा है। आ वेखदे ना, आ साडे चों कोई वस्तु प्रसाद लैके आउंदा ते की हुंदा, महाराज प्रवान करियो। आ हुण ठीक है, प्रतीक वजों असीं प्रवान करन दी गल करके किरपान भेंट करदे, प्रतीक है, पर बेसिक तो महाराज प्रवान करन तां ना मज़ा तो है। पुराने से सुने है वडेरियां तो, देखिया तो नहीं, सदा अपने वडेरिया ने किसे सुनिया देखिया होवे। कहंदे सी ननकाणा साहिब के आस पास उत्थे कुछ इलाके सन जिथे प्रसाद प्रवान उदों करदे सी तो पंजा लग जाए। असां तो वडेरिया तो सुनिया कि जे देग लैके आए ने तो पंजा नहीं लगता तो देग प्रवान नहीं सी मनते। इसदा मतलब शुद्धता पवित्रता सब कुछ इकट्ठा हो के बनाउण वाला चंगे शुद्ध मन ना बनावे, भांडे साफ सुथरे होण, जिथों वस्तुआं ते रसदां आईयां ने वो भी किते खोटी कमाई दियां ना होवण। ये ना कि किस दा गल वढ़ के लिया के रसद लिया के रखती तो असीं देग बना दिओ जी पवित्र हो जाएगी, नहीं, वो तो अपवित्र है। किसी को गल वढ़ के लैके आए हो, चोरी करके लैके आए, लार लुट के लैके आ, नहीं, मेहनत इसे करके ये सांझी देग बनती है। सारियां दी तिल फुल भेटा सांझी रूप च इत्थे इसे करके संगत दी देग प्रवानता असली कहंदे ना कि संगत ने अपनी कमाई चों तिल फुल भेंट कीता है, वो सांझा पवित्रता प्राप्त करता है। तो फिर बनाने वाला सुचमता दे नाल जो समाजिक ते उस वक्त की हालतों के मुताबिक है वो शुद्ध हिरदे ना बनावे तो फिर कहते प्रवान हुंदा है। ये ठीक है कि असीं ते अपने हुण अलग लैवलों ते पहुँच गए हैं, क्योंकि साडा ते धर्म हुण दिखावे दे धर्मां दे पदार्थां ते खड़ा है। असीं ते दिखाना हुंदा है
बहुत कुछ साडा दिखाविਆਂ ते चला के गुरुदेव कृपा करन सानू सुमत आवे, असी दिखावे दे धर्मां तो बाहर निकलीए ते यथार्थ सच नूं स्वीकार कर सकीए भी इत्थे सत चलदा जे इत्थे दिखावा नहीं। क्योंकि असीं खड़े ही उत्थे हाँ, सन लगदा पिलै जिहदी बुद्धि बल्ले बल्ले उहदी इत्थे भी बल्ले बल्ले आ। पर सच जानना बाहर कुछ भी हो गए, पर जदों प्रभु की दरगाह का वक्त आएगा ना, उत्थे सब चुन ले जाने ने। चुन वख कढ़े जजमालिया, उत्थे खोटे खरे परखियन। अज गल कहते हैं प्रभु की दरगाह दे विच खोटे ते खरियां की परख हो जानी है। जो खोटे ते खरियां की परख होनी है, तित सच्चा कै दरबारा राम। उस सच्चे प्रभु के दरबार दे विच सियाणे दार्शनिक इसनूं समझाउण वास्ते कदे कदे समझाते नहीं। शायद हौली हौली इसना दार्शनिक जुगतां दे नाल सानूं कोई समझ आ जाए भी इन्ने जी असीं संसार च विचरदे हाँ। कदे कदे वेखिया हुंदा ना, बहुत सारे विद्यार्थी अपने अपने कागज़ पत्र लैके डिग्रियां लैके इंटरव्यू दी लाइन च लगे होंदे ने। उन्हां दे बाहर कुछ बंदे बैठे हुए ने दफ्तरां दे, जिहड़े कागज़ पड़ताल करते हैं। वो बच्चा अपने सारे कागजात उसनूं दिखा दिंदा, देखदियां देखदियां वो कुछ कागज़ां नूं रिजैक्ट कर दिंदा, ये कागज़ तेरे नहीं चलते। बच्चा कहता जी मैं तो फलाने स्कूल तो डिग्री पास करके आया। अगला कहता नहीं जी इस स्कूलों तो मान्यता ही कोई नहीं, जिथों तू पढ़ के तो मान्यता ही खत्म हो चुकी है। अज तू कागज़ लैके आया तो वैलिड ही नहीं गा, ये नहीं तेरे वास्ते होएगा। तू कहता होएगा बहुत कुछ है, पर साडे पैमाने ते खरा ने भाई तू ले जा। वो सारे कुछ तैयारी करके आया अपने वालों, पर उत्थे आके रिजैक्ट हो गया। उहदे नाल दूजा बच्चा खड़ा है, वो भी तैयारी करके वो सारे कागज़ सिलैक्ट हो गए। हुण बच्चिਆਂ ने तो कीता, हुण की कीता कि जदों ने पढ़ाई कर रहे सी उदों जांच पड़ताल परख नहीं की भी असीं किस स्कूल च पढ़ रहे हैं। अज ये बड़ा जरूरी है कि तुसीं अपने बच्चे नूं किस स्कूल च पढ़ा रहे हो, उहदी रैंकिंग की है, नैशनल पद्धर ते उहदा स्थान की है। अज असीं देखते ना साडे बच्चे कहंदे कुछ पढ़ के इस नौकरी नहीं मिलदियां। असीं पढ़ते लए, पर किस कॉलेज तो पढ़ के आए हो, उहदी वैल्यू कितनी है। जदों किते जॉब वास्ते बच्चे इंटरव्यू जाते हैं, अगले केवल बच्चे की शक्ल नहीं देखते, उन्होंने कागज़ों की वैल्यू देखते हैं भी जिस कॉलेज तो पढ़ के आ जो कॉलेज की वैल्यू की है। तो जी कॉलेज की वैल्यू बाजार च कुछ नहीं, भावें महारत उसने बहुत वड्डी बना ली होवे, पर एजुकेशन सैक्टर दे विच दी वैल्यू अलग है। एवें नहीं लोग लभदे भी आ टॉप 10 ने तो टॉप 5 ने टॉप 20, उन्हां चों बच्चे नूं पढ़ाओगे तो फिर शायद तुहानूं कहना नहीं पेगा कि साडे बच्चिआं नूं जॉब नहीं मिलते। खैर एक अलग सबजैक्ट है, समाजिक है, मेरा सबजैक्ट नहीं। पर चेता रखना जितनी उस विद्यालय की वैल्यू ज़्यादा है, उतनी ही साड़ी कामयाबी का समा ज़्यादा बन जाता है। तो अध्यात्म खेत्र में असीं देखना है, यही धर्म है जिन्होंने आप धार्मिक खेत्र कहने आ। ये देखना भी जिथे असीं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसकी वैल्यू की। गुरु नानक साहब के दरबार तो अलावा लोग भी बथेरा कोई जाप ताप करते होणगे ना, असीं मना तो नहीं करते भी नहीं करते। लोग की करते हैं, आप टिप्पणी तो नहीं कर सकते भी क्यों करते हैं, पर यह देखना उन्होंने वैल्यू कितनी पई है। ये देखना होएगा भी उन्होंने वैल्यू में सच के पैमाने पर परखिया जाएगा। तो परख कि नहीं कि उत्थे सत चलता है, जे दिखावा धर्म चल रहा तो सत नहीं मिलेगा ना। इसे करके गुरु नानक साहब जी के घर जिथे आप बैठे हाँ, इत्थे दिखावे लिए कोई थां नहीं। असीं लख वार दिखावा करी जाइए, विखावा करिए, पर विखावे लिए कोई थां नहीं। इत्थे सत की कीमत है। गुरु नानक पातशाह सत कहते हैं, सत बनो, सुनो सत बाणी, विचार सत दा रखो, आचरण सत दा, व्यवहार सत दा, किरदार सत दा। महाराज कहने उस दरबार सब परखे जाने। तो दार्शनिक समझाते हैं, फिर जिस तरह बच्चे लाइनां ते लगे होंदे ना, आ फिर जीवात्मा भी जिन्होंने असीं कहने नानक जी पाए कै लिख नावै धर्म बहालिया। उत्थे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कढ़े जज मालिया। थाव न पायन कूड़ियार, मूँह काले दुजक चालिया। तेरे नाए रत्ते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया। पता क्यों? लिख नावै धर्म बहालिया। जो कागज़ पड़ताल करता पिया है ना, वो धर्म राय बिठाया होया। असीं गए,
अपने अपने कर्मां के कागज़ लैके जा रहे हैं, हर कोई जा रहा, नित तुरे जा रहे हैं, पहुँच जा असीं उत्थे पहुँच जाना। तो जिन्हां ने कीते कूड़ कबाड़ होया फिर उन्हां दे टिक्के लगदे ने। एक दार्शनिक विद्वान ने बड़ी गंभीर गल की, कदे कदे समझण वास्ते भी समा लगदा है। क्योंकि जदों तो उस प्रभु के दरगाह वाल जाईदा है ना, कदे कदे वेखिया होना बाज़ारां च कुछ पशुओं ते निशान लगे हुंदे ने। सारे संसार के विद्यार्थियों की डिग्रियां ते स्टैंप मोहर लगी हुंदी है। जितने फोर्सिस ने उन्हां दे जो बिल्ले ने उन्हां दे च एक मोहर हुंदी है, हर देश की अपनी मोहर है, निशान लगे ने ना। तो इस तरह जो प्रभु की दरगाह वाल जाईदा है तो वह साडे आकार नहीं वेखदा, वो स्टैंपां देखदा तेरे ते मोहर के दी है। वो देखदा है तेरे को सच है, तेरे को प्रवानगी सच दी है। तो जिन्हां को प्रवानगी सच दी पल्ले सच नहीं हुंदा ना, उन्हां दे उत्ते काले निशान लग जाते हैं। मैं नहीं कहता मूँह काले दो चक चालिया, लाइन च लगे ने कागज़ पड़ताल करदा तो काला मूँह जम मारिया, वो मूँह ते काला निशान लगा दिंदा है, तू अगे नहीं जा सकता। जिन्हों काला निशान लग गया तो अगे नहीं जा सकता। हुण दूजे बच्चे दूजियां ते उजले निशान लगते हैं, उजले मुख। हुणे पढ़िया श्लोक आसा की वाद की संपूर्णता ते, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले। वो उजला मुख सामने गए ने, उन्होंने भी अपने सलाइन च लगे ने। एक दा मूँह काला करके बाहर कढ़ दिता है, दूजा आया जी उजले मुख वाला। उजला साफ सुथरे कर्म ने, शुभ कर्म ने, चंगा है, उजले मुख दा है। तीजा एक होर आए, उहदे हिरदे च नाम है, इन्हें ते नाम जपिया तो उजलता प्राप्त की। एक तो भी गंभीर होर गहरा आ गया तो कहने फिर उहदे मत्थे टिक्के लाल, उन्होंने तीन मुख टिक्के निकले, उन्होंने मत्थे ते टीके लगा दिते जाते। एक तो काला लगाता, एक दा उंज चेहरा साफ उजला है। तो जो उन्होंने उजलियां दे विचों होर परख के गंभीर, जिन्हों आप मैरिट कह दें अजकल बच्चों लई, होर उच्चे छांट के करने ने, फिर उन्होंने निशान लगांदा। तीन मुख टिक्के निकले, कैसे टिक्के? टिक्के मत्थे टिक्के लाल, फिर लाल निशान लग जाता है। तो जिन्हां दे लाल निशान लग जाता है वो सच्चे सचखंडी हुंदे ने। जिन्हां दे मुख उजले हुंदे ने उन्होंने आनंद ते स्वर्ग मिलते हैं, तो जिन्हां दे मुँह काले हुंदे ने फिर नरकां दे भागी बन जाते हैं। दार्शनिक अध्यात्मिक समझाते और संकेतक दर्शन गुरबाणी च मिलते हैं। तो असां ने फिर की करना है? असी जपीए नाम ताकि कम से कम मुख उजला तो हो सके, सन्मुख ते जा सकीए। इत्थे आके असी अपने आप को उजला करना है, सवारना है, समझावना है। इत्थे महाराज कहते काम करो फिर, खोटे खरे सा परखियन ते सच्चा कह दरबारा राम, खोटे दरगाह सुटियन। खोटियां नूं फिर दरगाह ते कित्थे सुटिया? नरक घोर मह गोते खावें। दुनिया के ज्ञानियां ने ना क्या जी 28 नरक होंदे ने। गीता के ज्ञान विच 28 नरकों का जिक्र है, पर शायद सानू पता है उन्होंने तो गिणती 28 तक रखी। पावन बाणी का पाठ अपने सहज पाठ के रूप च कीता होना है। तो महाराज ने पता कितने क्या? 84 नरक साकत भोगाई है। 84 लाख जूना ने ना, 84 नरक साकत भोगाई है। अज साकत बन जाते जी जिक्र आप करते हैं। साकत दुनिया के दूजे पासे ते खड़ा है, तो संत दुनिया के दूजे पासे ते खड़ा है। एक बिल्कुल निवाण ते खड़ा है, तो एक बिल्कुल उचाण ते खड़ा है। संत प्रभु नूं मिलना दे मुकाम ते शिखर ते है, तो संत दे संगत वास्ते सानू कहिंदे ने, ते साकत दे मत्थे लगण तो भी मना करते हैं। क्योंकि साकत 84 नरकां नूं भोगेगा, पता नहीं। महाराज का खुर बड़ा प्यारा बचन है कि बहुत बचन महाराज ने इस नुकते ते दिते ने। अज जो संसार के मंद कर्मी जी दरगाह वाल जाते ना, तो फिर दे कर्मां नूं देख के ते सिट दिंदा है बचन, खोटे दरगाह सुटियन। किवें सिटदा है? कदे कदे वेखिया होना, कदे कदे वड्डे अखाड़ियां दे विच तकड़े पहलवान कमज़ोर नूं उठा लैंदे ने ते पुहा के अखाड़े दे रिंग तो बाहर सिट देंदे ने। मैं नहीं कहता, महाराज का बड़ा प्यारा ते कठोर जिहा बचन है। दई भवारी पुरख विधाता है। भवारी कहते ने भांटड़ी दे देना। तकड़े पहलवान माड़े नूं भांटी दे के सिट देंदे ने।
दई भंवारी पुरख विधाता ते नतीजा बाहुर बाहुर जन्मादे। किन्नी कुछ दूर इन 84 लाख जूना च सिट देगा सानू नहीं पता। वो जमराज ने जो भांटी दे के सुटना ना, किन्ने जन्म दूर चले जावांगे, उत्थों फिर तुर के इत्थे आवांगे, फिर दरवाजे ते मान लो किसी दस। मैं नहीं कहता हर दिन पढ़िया होना पाठ करदे करदे प्रभु का सिमरन नहीं किया। संतां भगतां ने कहा भाई नाम जप लिया करो, नहीं जपिया तो फिर कितनी दूर जा डिगा। मनुखता की श्रेणी तो दूर जाके चौपायां की श्रेणी चला गया। हर बिन बैल बिराने हुई है, फूटे नाकन टूटे का धन कोदों को पास खाई है। सारो दिन डोलत बनवहिया अजो न पेट अघई है। जन भगतन को कहो न मानो। भाई भगतां दा गुरमुखां दा कहा नहीं मानते तो कोई गल नहीं, की वो अपनों पाइए हुण अपना कीता जे पाओ। आ जिहड़े जी असीं देखदे ना, कुछ चीज़ां ऐसियां ने जो कदे कदे अनुभव दे विच आउंदियां ने, ते अनुभवी बजुर्गां दे कोलों ये चीज़ां रहस समझ आउंदियां ने। बहुत सारे जी साडे नेड़े तेड़े फिरदे ने, आले दुआले वेखे होने, पता किहड़े ने, जिहड़े किते इत्थे रहिंदे सी ते संत गुरमुख इत्थे बाणी पढ़ते पढ़ाते सुनते सुणाते, पर ये मजाकां करते सी। अज इत्थे दर ते भटकना, कोई चौपाए बन के भटकदा फिरदा, कोई होर भटकदा फिरदा। ये सब उही ने जो इस दर का प्रसाद खांदे ते रहे ने, पर इस दर के बचन नूं मन्निया कोई ना। पर उन्हां दे अंदर वो कलात्मक पक्ष है, इस करके खिंचे चले आउंदे ने इस दर ते। क्योंकि असीं इन्हां दी व्याख्यावां नहीं कर पावांगे वड्डे पद्धर ते, क्योंकि साडे को दिखाण वास्ते कोई प्रमाण नहीं हुंदा। पर अभी अनुभवी दसने कि है सब उही जिहड़े इन्हां दरां दे आले दुआले भटकदे फिरदे ने। पुराने बजुर्ग साखी सुणांदे उहदे आपने सुनी होवे। सतवें पातशाह साहिब जी निता प्रति लौडे वेले तीसरे पहर जंगल सैल करन जांदे ने। कोई जख्मी जानवर मिल जाए, जख्मी पक्षी मिल जाए, उसनूं पकड़ लेंदे, जख्म का इलाज करते, सट फिट लगी हुई पकड़ लेंदे, लिया के इंतजामात करते। पर अज महाराज अपने घोड़े ते सवार होकर जा रहे ने, सामने देखा कि सप लिटदा पिया, बड़ा वड्डा अजगर सप है। महाराज वाल देखदा है तो मूँह खोलदा है, आवाज़ां कित्थे निकलदियां, सरप जून जी हुई, त्रिगत जून जी हुई, पर लिटदा फिरदा है। महाराज ने अपने पत्थे चो स्वर्णमुखी तीर कढ़िया ते चला दिता है। तीर जाके उस अजगर के सिर च वज्जा है, मर गया है। साढ़े वर्गियां क्या महाराज, ये अद्भुत करतब होया, आपने तो कदे कोई जी मारिया ही नहीं। आपने तो तड़पते हुए जियां नूं संभालिया, दवा दारूआं कीतियां ने, पर ये सरप नूं मारता है तो तड़पदा पिया सी। नाले अजगर साडा की लेंदा, जंगलों च बथेरे तुरे फिरदे होणगे। महाराज कहने लगे मारिया थोड़ा है, छुड़ा दिता है। महाराज कितों छुड़ाया? कहने लगे जाके देखो तो सही। देखे अजगर के तन ते सैकड़े कीड़ियाँ चढ़िया हुई। नोचन जा वड़े ने पता होना है, सप के तन ते कट लग जाए सी बस एक बार, फिर मारन की जरूरत नहीं पैंदी। कितना जहरीला सप होवे, आ कीड़ियाँ खा जाती, क्योंकि होवेगा जहरीला अपने घर, पर कीड़ी नूं डंग मार सकता है। कितना भी वड्डा ते जहरीला सप होवे, कीड़ी नूं डंग नहीं सकता। तो सैकड़े हज़ारां कीड़ियाँ चढ़ जांदियां ने ते नोच नोच के खा जांदियां ने। उहदे चढ़ियां नूं सिखां पुछया महाराज कौतक क्या है? महाराज कहने लगे जो अजगर है ना, अपने आप नूं वड्डा धर्मी गुरु मन बैठा सी। आ जितनियां कीड़ियां ने इहदे सिख बन गए। हुण वो तो इहनूं मनदे ने ना, पर इन्हां रब दा नाम बंदगी कदे जपी नहीं, कदे कीती नहीं, कुछ नहीं कीता। बस ये अपने चेलियां दे सिर ते मौजां लैंदा रहा। पर समा आया, क्योंकि मुक्ति ते किते आप डुबे चौबेद में चेले दिए बहाए वाला काम होया। आप ही डुबिया तो सब डुब दिते। समय के विधि के विधान मुताबक हुण कीड़ियाँ बन गए। जिन्ने दे शागिर्द ये मनने वाला पैरोकार से सब कीड़ियाँ तो जूने पे ने, तो हुण उन्होंने भी मौज लगी है। जिवें ये अपने सिखां दे सिर ते बह के मौज लैंदा सी, गद्दियां ते पलसेटे मारदा सी, रज रज खांदा सी, तो वो कमाउंदे सी। अज इहदा मास बड़ा है, तो कीड़ियाँ मौज नाल खा रही ने, कीड़ू किते जाण की लोड़ नहीं, तो हुण तड़प रहा है। पर संगत कीती सी ना, शुरुआत तो चंगा सी ना, जदों धार्मिक मंडल कदे संगत की उदों तो रब रब जपे, उस आरंभक जपे हुए नाम का फल मिले कि साडे संगत के दर्शन होए।
उस वक्त जो अरदासां कीतियां सी उस ते सदके अज संगती दर्शन ते अज नूं मुक्ति दा दान दिता। चेता रखना असीं इन्हां चीज़ां नूं किते विग्यान साबित नहीं कर पावांगे, पर किते मालवे दे इलाके जाके देखना, हजूर साहब तक चले गए उन्होंने पता होना, खरगोश की जूनू महाराज तीर मार के कढ़ लेंदे ने, उसे नूं जो कदे मूला बन के गुरु नानक की संगत चों भज गया सी। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत सन इतिहास में मिलते हैं, परखे जाते हैं तो भवांटड़ी दे के सिटे जाते हैं, कितने जन्म दूर जाके डिगेगा पता कोई नहीं, पर आना फिर इधर नहीं है, क्योंकि चढ़ना तो है ना, मुक्ति होना ना, आत्मा ने मुक्ति का राह लभना ना, चलते चलते इत्थे आना, इत्थे आके फिर बेनतियां कर दियाँ, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, भगत भी कहते ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेख है, महाराज कृपा करो। आ 12वां की पावन बाणी पढ़ते पढ़ते आप एक तुक साल च एक बारी सी पढ़ते थे है ना, किरत कर्म के विछड़े हुण कर कृपा मेलो राम, असी विछड़े हाँ। इन्नी कुछ समझ आ गई कि अपने करतां ते कर्मां करके विछड़े हाँ, तुसीं विछोड़िया नहीं, तुसीं ते जुड़दे हो, पर की करिए तुसीं शुद्ध भी ते करदे हो, तुसीं एक एग्जामिनर भी ते हो, मास्टर भी ते हो, साडे गुरु भी ते हो, सानू सवारना भी तो होया। महाराज कहने लगे जदों प्रभु की दरगाह च इत्थे दरवाजे ते जांदे ना, खोटियां नूं फिर बाहर सिट दिंदा है, वो कित्थे जाके डिगणगे, कितने दूर डिगणगे, साडे को कोई व्याख्यावां नहीं गियां। हाँ, वडेरें दीयां गाथावां दे राहीं अपने वास्ते ज्ञान की गल थोड़ी बहुती समझ आउंदी है, वो भी कदे कदे ते कदे नहीं आउंदी, कदे असीं तर्क उठा के लै ये किन वेखिया है, लंघ जाईदा है। पर महाराज कहंदे खोटे दरगह सुटियन, फिर की हुंदा जी, उबे करन पुकारा राम, सिट दिते दूर फिर उत्थे पुकारदे ने। मैं नहीं कहंदा, सुनिया होना आपने ते पढ़िया भी होना, पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय, दूर सिट दिता भवांटी दे के, दूर सिटता हुण उत्थे उबे करन, उबे कहंदे ने उभर उभर के। आ कदे कदे वेखिया होना बहुत सारे जिथे मंगते मुगते बैठे होण ते किते कोई धनाड़ व्यक्ति लंघ जाए तो जिहड़ा अगे नहीं आ सकता ना, शरीर नहीं का, उत्थों ही बाहां लार लार के आवाज़ां दिंदा है, रब दे नाते मैनू दे दे, मैनू दे दे, मैनू दे दे। पहुँच नहीं बन पा रही, पुकारदा कि शायद ये जो कुछ वंडण आया ये तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए, तो शायद इनू तरस आ जाए तो मैनू भी कोई टुकड़ा दे देगा, नहीं तो नेड़दे वंड के चला जाएगा, मैं फिर दूर रह जाऊँगा। वो उबे होंदे, याद रखना सेवा भी उबेपन ते जाके करनी पैंदी है। 12 बचन है ना, सेवक भी उबी सेव करे, सेवक भी उभर के भाव अगे हो के वध के सेवा करनी, तो ये भी उबे करन पुकारा, उभर उभर के पुकारा करते हैं। आ कदे डुबदियां नूं वेखिया होना, वो बचाओ बचाओ, उभर के कोशिश करते हैं कि शायद पानी तो बाहर आ जाएंगे। उबे करन पुकारा राम, साखियां सुनिया ना, जदों राजा जनक जी मातलोक नूं छड्ड के सचखंड नूं गमन कीतो ने, तो पुराने बजुर्ग सारे दसदे ना भाई गुरदास समेत कि जदों उस रस्ते तो लंघे ने तो लोगों की चीख पुकार करनी पैगी, तो पुछन लगे इन्ने रौला रप्पा काहदा पै रिहा। कहण लगे वो लोग ने जिहड़े मातलोक ते सी ते बंदगी नहीं की, चंगे कर्म नहीं कीते, हुण सब तो लेखा लेना है। पर लेखा पता किद्दां लैंदा है, लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी, ज्यों तिल कहानी पीड़ाएं दा। आ तिलों चों तेल कढ़दे ते वेखे ने ना, इस तरह लेखे लैंदा है, हड्डियां नचोड़ लैंदा है। मार मुहे मुँह खाए, पाणा लहै सजाए, पाणा कहंदे ने जुत्तियां नूं, मूँह ते जुत्तियां पैंदियां ने, मार पैंदी है। तपत थम गड़ लाएंदा, तप दे थम नाल गड़ ला दिंदा है। बड़े तरीके ने ते अपने लेखा, इस करके महाराज एक तां सानू थोड़ा सावधान सुचेत करदे कि तैं सुनिया नहीं, जमराए बहुत डाढ़ा है। आज कहने लगे उबे करन पुकारा, फिर कहंदा उबे करन पुकारा। हुण ते बड़ियां उभर उभर के पुकारा करते हैं, पर चेता रखना हुण दियां कीतियां पुकारा कोई सुनदा नहीं जी। आ थोड़ा जिहा अगे जावांगे ना इसे वडहंस विच ही, जिथे आलाहणियां दा जिक्र आउणा है, उत्थे महाराज दसते ने कि इस राह ते जितने मर्जी कोई पुकारा कर ले, एक
तिल जितनी सुनवाई नहीं होंदी। जिवें दरगाह 'ਚ एक दर्शन सानूं कराਉਂਦੇ ने गुरबाणी 'ਚ, किसी चोर नूं कटघरे 'ਚ खड़ा कीता होवे ते जज सामने बैठा होवे। हुण चोर बिल्कुल रंगे हत्थीं गुनाह करदा पकड़िया गया ते जज सामने खलो के जज की तारीफां करे जी तुसीं बड़े धर्मात्मा, जज साहब तुसीं ते संत हो, तुसीं ते बड़े दानी हो, ते की जज दी चोरी दे गुनाह माफ़ कर देगा? हुण वो कटघरे 'ਚ खड़ा है, गुनाह साबित हो चुका है, ते चोर आप वक्त दे जज की तारीफ करी जाए तो की जज की तारीफ सुन के उन्होंने गुनाह माफ़ कर देगा? सज़ा नहीं देगा? नहीं तो कानून मुताबिक सज़ा देगा ना। तो महाराज कहने लगे इसे करे जिहड़े इस तरह पुकारां करते हैं, फिर बथेरियां तारीफां करते हैं, पर उत्थे कोई पसीजदा नहीं, कोई परवाह नहीं करता। अज कहने लगे उबे करन पुकारां मुग्ध गवारां दरअसल मुग्ध सन। वक्त जो मिलिया सी इन्हों अपने तन का बल, धन का बल, प्रतिभा का बल, जिन्हों धन जोबन प्रभुता कहते हैं, इन्हों के बल विच मुग्ध हो के परवाह ही नहीं करते किसी की। अज भी असीं देखते हैं बहुत सारे लोगों जिन्होंने मान तान मिल जाता है, धन मिल जाता है, शरीर ते ताकत मिल गई या होर कोई प्रतिभा मिल गई, बंदे नूं बंदा नहीं समझते। गरीब का दुख तो बड़ी दूर की गल, भरावां नूं भरा नहीं मनते अगले। पर चेता रखना फिर लेखा तो लिया जाता ना, सब तो लेखा लिया जाना है। कह लगे उबे करन पुकारा मुग्ध गवारा मनमुख जन्म गवाया। ये सारे वो ने जिन्हों ने जन्म का हीरा मिलिया सी सबनों। हीरा लाल अमोलक कहते ना, मानस जन्म दुर्लभ है बार होए ना बारंबार कहते ना। मिलिया सी इन्हों भी, मौका प्राप्त होया सी इन्हों भी, पर इन्होंने मौका गवा लिया। हुण मौका छड्ड बैठे ने, तो जे मौका गवाच गया तो हुण तड़पो भाई, हुण तो सहवे जीआ अपना किया, हुण तो अपने कीते नूं सहना पैना है। महाराज लगे मनमुख मुग्ध गवारा, इन्होंने मनमुख जन्म गवाया, अपना जन्म गवा बैठे इसे करके क्योंकि साडे हथ अजे जन्म हैगा, जिन्हों आपां लोग जीवन कहते हैं ना, बहुत थां ते महाराज इसे नूं जन्म कहते। जन्म का दौर बड़ा वड्डा है, जिन्हों आपां उम्र कहते हैं भी किसी नूं 100 साल की उम्र मिलती ने, ये जन्म का ही दौर है। मृत्यु तक असां पहुँचना होंदा है तो साढ़े इत्थों किते गवाच ना जाए। सियाणे थां कहते हैं कि भाई जिन्ने साल जन्म साढ़े नूं हो गए ने, अज जिन्होंने चेतना है कदे ठहर के अपने बारे सोच लिया करिए कि भाई 50 साल गुजर गए, 50 साल का जन्म मैनूं मिलिया सी, ये मौका मैनूं मिलिया, मैं गवा बैठा, गुजार बैठा, हुण की खटिया है इन्हां 50 सालों के समय दे विच मेरे पल्ले की है। तो असीं की देखते हैं, देखो जी मकान बना लिया, बड़ी सोहना कीता, 4 पैसे इकट्ठे कर ले, बड़ा तरक्की की, भाई बच्चे पढ़ा ले, हाँ जी चंगा कीता, पर भाई सच पल्ले है ही, निंदा चुगली तो नहीं करता रहा कि अपने वास्ते। और ये अपने आप नूं पता होंदा है कि असीं अपने वास्ते अपनी नज़रां मिला सकते हैं, किसी दूसरे की बड़ी दूर की गल, गुरु सतगुर दे अगे सन्मुख होना तो बड़ी वड्डी गल है। दर्शन तो कहते हैं थोड़ा जिहा जाप करके, बहुता नहीं, एक जपजी सौ का पाठ करके अपने आप न शीश च निगाह मिला के देखना, बई तू ठीक है, तू इन्ने जोगा है कि नज़र मिला सकें अपने आप नूं। ते जे मिला सकते हो तो कुछ खट्टे आज फिर कमा लिया, कुछ तो कमाया ना, कुछ पल्ले है। तो जे लानतां पैंदियां, सामने वाला लानत बंदे आ भी तू खटिया, आ भरा का हिस्सा मार लिया, ਇਹਦੀ तनख्वाह नहीं दी, ਇਹਦੇ पैसे डुबते, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ही, तो फिर सब अंदरों आवाज़ां आउणियां ने, और यही आवाज़ां ने तड़पाना है। अज नूं सी मृत्यु के समय तो लोगों की हाय हाय सुनते ना, वो सियाणे मनते ने, दख के अध्ययन किए ने कि जो मृत्यु का अंतिम समा आउंदा है, जीवन भर दियां इहो जिहियां घटनावां जिहड़ियां असीं लैके दित्तिया नहीं, मुकर गए, खा गए, गल वड्ड लिया, बहुत कुछ किया, वो सामने चलचित्र वांग अगे स्क्रीन वांग गुजरदियां ने, तो फिर पता लगता मना ये तो नहीं सी करना, ये तो बड़ा वड्डा पाप हो गया, ये तो बड़ा वड्डा गुनाह हो गया, नहीं सी करना चाहिए, कर बैठा है हुण की करा। फिर तड़प पैदा होती, शोह पैदा होती है। तो जिन्हों ने सन्मुखता रहते हैं, इसे करके मौत का दुख नहीं होंदा। असीं कह नहीं पाते, पर ज्ञान खंड च समझ आउंदी है कि मृत्यु का दर्शन मनुख के सारे जीवन का दर्शन होंदा।
जे किसी मनुख के प्राण बड़े सौखे निकलते हैं, आराम नाल गलबात करदे गुजरते हैं, समझ लो वो अमीर है कि गरीब कोई फर्क नहीं, पर निर्मल तो शुद्ध रहा है। बहुत ऐसे जी देखे ने जो गल्लां करदे करदे हौली हौली आ पहुँचे तो शरीर छड्ड दिता, तो बहुत सारे वो ने जो कई दिन पहलां तो हाय तौबा मची, हुण तो डॉक्टर तकरीबन सानू तड़पण ही नहीं देंदे, पर चेतना पीड़ा नहीं मुकदी। डॉक्टर चुप करा देंगे ने, मूँह च वेंटीलेटर पाता, ना रौला पा सकेगा ना तड़प सकेगा। चलो विज्ञान इन्ना किते कर तक तड़प घटाती है, पर आत्मक तड़प नहीं जे घटती। हथ मरोड़े तन कपे स्याहों होआ श्वेत वेखे ने। महाराज कहने लगे उबे करन पुकारा मुगत गवारा, मनमुख जन्म गवाया, बिखया माया जिन जगत भुलाया। सच है कि माया का तो काम ही भुलावा प देना। याद रखना, जिथे माया सानू दुनिया की सहूलतां देंदी है, उत्थे माया एक बहुत वड्डी एग्जामिनर है, बहुत वड्डी साडी वो रुकावट पैदा करने वास्ते दी सिर्फ ड्यूटी है कि देखते किन्ने कु तेरियां रुकावटां नूं टप के मेरे तक आउंदे ने। आ कदे कदे वेखिया होना ना, जिहड़े अध्यापक बच्चे नूं पहिलां प्यार नाल पढ़ाउंदे ने, बाद अड़ौड़ियां बुझारतां ते एग्जाम वही पाउंदे ने ना। इस तरह करता सानू जीवन दिंदा है। करते ने ही इस माया नूं हुक्म दिता है, पिता कृपाल आग्या ए दीनी, बारक मुख मांगै सो देना। करते का हुक्म है इस माया प्रति कि बालक जो मंगे तो दई जा, रोण नहीं देना। तो बालक की मंगे, बालक नूं चाहिए ना कि मैं की मंगा। असी माल है, माया तो पदार्थ मंगी जाने, माया पदार्थ दई जाती है। पर चेता रखना, जे असीं रब दे राह ते तुरांगे तो माया के पदार्थ सिट देगी। देखते किन्ने कु जी ने जो इन्हां पदार्थां दी चमक नूं टप के पार जाते हैं। तो नानक बारक दर्श प्रबच्छा है। पातशाह कहण के बालक नूं पता की चाहिए, महृदय वसै नित चरना। जिवें बालक पदार्थ मंगदा है, दाई दाया पदार्थ देंदे ने, ते कदे कदे बालक फिर मां नूं कह के रोण लग पैंदे ने। फिर पदार्थां नूं चुप नहीं करते, फिर मजबूरन उस दाई नूं ये बच्चा चुक के मां नूं देना पैंदा, बई तूं लै हुण तेरे तो बिना नहीं मनदा। इसे तरह भगत जदों मां मां करते नहीं, वाहिगुरू वाहिगुरू करते हैं, तो फिर माया नूं मजबूरन भगतां नूं पार पहुँचाना पौंदा है। माया ही दासी तिन भगतां की, तिन अगे कमावे कार कर लग पैंदी है। कहण लगे इस तेजां ही करते हैं, इन्हां अपना जीवन गला खोटे खरे परखी दे ने ना। विखिया माया जिन जगत भुलाया, साचा नाम ना पाया। ये जिया ने माया के चक्कर च पै के सच्चे नाम नूं समझिया नहीं, वाहिगुरू जी के नाम नूं जाणिया नहीं। इन्हूं चंगा ही लगदा सी, क्योंकि पदार्थ मिलते सन, पदार्थ खाई पी जाते ते हंडाई जाते सन। पर मनमुख संतां नाल वैर कर दुख खट्टे। पर यह मनमुख तां बहुते माया दे ऐसे उलझण च पए। संत भगत कहंदे भाई ये काम ना करया करो, तो ये लोग खिजे हुए संतां भगतां नाल वैर कर बैठे ने। अज भी बहुत लोग करते होणगे, सदियां तो रहे तो सदियां तक रहना। संतां भगतां नाल वैर कर बैठे, तो महाराज ते बिख खट दुख खट्टे संसारा, ते इन्हां दुख कमा लेने, दुख इकट्ठे कीते ने, ते इहदा जवाब तो देना पैना ना। उन्हें पुछना क्या तैं खटिया, कहाँ गवाया, सानू सब नूं पुछ लेना, दुख खट्टे संसारा। महाराज लगे फिर वक्त आउणा जे खोटे खरे परखियन, ते सच्चे दरबारा राम। उस प्रभु की दरगाह दे विच खोटे ते खरे की परख होनी है। इस करके भाई खरे बनने का यतन करिए, ते खरे नूं ही महाराज कहते ने सचियार बनने का यतन करिए। सचियार ही खरे साबित होणगे। बड़ा प्यारा बच्चा ने सचियार कौन साबित हैगा, पल्ले साच सच्चे सचियारा। जिन्हां दे पल्ले सच होएगा वो सच्चे साबित होणगे, वही सचियार साबित होणगे। इस करके यतन करिए, जो भी किरत कमाई साडी कार विहार परिवार संसार का उत्ते करना साडा धर्म है, पर पल्ले सच जरूर रखना, वो सत ते आधारित रखना, ताकि कल जब सानूं पुछया जाएगा कि की कीता, महाराज मैनूं इन्ना ही सत पता सी, मैं सत कीता, जो सत सी ना मैं कीता है। हाँ धन कमा पाया कि नहीं, अगलियां बातां ने। गुरुदेव कृपा करन असीं सत ते आधारित हो जाइए। सत आधार, सत आचार, सत व्यवहार, सत किरदार हो जाए। हौली हौली साडे बोलां 'च सच आ जाए, तो जिन्हां दे सत आधार किरदार व्यवहार हो जाता है, फिर उन्हां दे बचन सत होण लग पैंदे ने। इसे करके भगतां दे
बचन सत हुंदे ने। भगत मुखै ते बोलदे से बचन होवंदे। वो सत ने ना, वो हो जाते ने। गुरुदेव कृपा करन सी खरे हो सकिए, प्रभु की दत्ते खरे सत करके होंगे। तिनक बचन प्रवान करना, भुल चुक दी खिमा, आसीस ते प्यार देंदे फतेह बुलावना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।